Welcome to our new video in the SQL basic series. So myself Prince and welcome to Data Analytics Hub. So today I'm going to share my knowledge about the SQL basic like select, insert, update, delete statement, and then after that we will practice some live question or the industry question, industry demanding question. So in the previous video, we were talking about uh, select and somewhat about the insert statement. But in today's video, we are going to talk about insert and then delete, update, and other statement. So in insert, basically, we use insert function to insert something in the table. Okay. So here you can see the syntax. So insert into patient. Patient is the table name where we are inserting values under these column like first column, last name is second column, gender, birth date, city, from inside allergy and whatever. So accordingly we are going to put it values so that we can see that here like select tester. Yeah. So you can see. So earlier we don't have values for John Smith, but now we can see we have values for John Smith in the patient table. And if we want to add like insert particular data in a specific column, then also we can use this function like insert into patient. Then we can just write the uh, like uh, column name and then accordingly values. तो हमें क्या होगा कि सिर्फ उस particular column में we can feed that value and also we can check it now here. So you can see हमने वैल्यू किस में डाला था फर्स्ट डाला था पेशेंट में लास्ट नेम में देन जेंडर में तो उसके अकॉर्डिंग we got the value here but for the rest of the column we are getting null values because we have not like fitted them with a particular value क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे लास्ट स्टेटमेंट में आपने देखा कि हमने जेंडर बर्थडे सिटी सबके अंदर एक एक वैल्यू डाला जेंडर के अंदर एम डाला देन बर्थ डेट 21 टू 1994 समथिंग लाइक दैट बट यहाँ हमने वैल्यू ही नहीं डाला सो वी आर गेटिंग नल got it similarly we can use for other case also so we are done with the insert thing so basically if someone asks whether in an interview or something like that like why we use insert function in a SQL so your answer should be like that this insert statement is basically used to insert something in the table which अगर पहले से कुछ टेबल में नहीं है हमें कुछ डालना है अपडेट करना है तो लाइक दैट देन वी विल मूव टू delete statement yeah so basically the delete statement is used to delete existing record in the table so पहले से अगर टेबल में हमारे पास कुछ है like XYZ का डेटा है and we want to delete that particular data so उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि we can use the delete command so basically delete का syntax होता है delete from table name हमें डालना है where कंडीशन लगा के कि हमें क्या डिलीट करना है क्योंकि अगर if we are not going to use particular where clause here then in that case your whole table will be deleted you can see here be sure to specify the where clause otherwise failing to include the where clause will result in all of the rows to be deleted so it will just delete whole rows that means पूरा टेबल ही आपका डिलीट हो जाएगा सिर्फ टेबल नेम रहेगा बट डेटा नहीं रहेगा so you can basically use here like delete from patient where first name equal to Paul. So जहाँ पे भी first name Paul है this will delete all the data. You can see here row modified 33. So this is all about the SQL delete statement. So
I'm just moving it fast in a little bit fast manner because these are the basic thing जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ टाइम देना है we can surely give time. Then we are coming to update statement. Update क्या है? So basically SQL update statement is all about if we want to update something which is already exist in the table. कि टेबल में चलो हमारे पास जॉन का डेटा है but we want to update the जॉन बर्थ डेट. सपोज कि जॉन का डेटा 1 जन 1999 का था और अब हमें लग रहा है कि नहीं यार वो डेटा हम गलत फीड कर रखे थे तो वो अपडेट करना. या इफ वी वांट टू अपडेट द नल वैल्यू कि नल वैल्यू से हमें कोई वैल्यू देना तो भी हम अपडेट का यूज कर सकते हैं. और सिंटेक्स इज यूजिंग like update and set. So update table name first we used to write, we need to write the table name, update table name, then set column उसमें values डालना है और where condition लगा के. क्योंकि अगर where नहीं लगाएंगे तो सिमिलरली डिलीट की जगह इसमें भी सारे रोज में अपडेट हो जाएगा. सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपडेट द फर्स्ट पेशेंट, पेशेंट जिसके पेशेंट आईडी 1 है विथ अ न्यू फर्स्ट नेम एंड न्यू वेट. तो अपडेट पेशेंट हमने टेबल नेम डाल दिया एंड सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन एंड वेट 120 वेयर पेशेंट आईडी इज 1. तो ये किसके अकॉर्डिंग जा रहा है जहां पे पेशेंट आईडी 1 है क्योंकि फर्स्ट नेम में तो सबके लिए है ना. फॉर पेशेंट आईडी 1 2 3 हमारे पास टेबल तो उस वे में है लाइक फर्स्ट हमारे पास कॉलम है पेशेंट आईडी, देन फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, बर्थ डेट, जेंडर, ब्ला ब्ला ब्ला. तो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है पेशेंट आईडी जिसकी 1 है उसके नेम अपडेट करना है. तो वी कैन यूज अपडेट पेशेंट्स where patients is the table name, then we will use set clause, then first name equal to John, weight equal to 120 where patient id equal to 1. We can use in this manner. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो पेशेंट आईडी क्या है हमारे पास अब दिखेगा कि जॉन है. सॉरी फर्स्ट नेम हो गया जॉन, वेट उनका 120 हो गया. यू कैन सी इट हियर. अब इफ वी वांट टू अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड जैसे मल्टीपल जहाँ पे भी मान के चलो कि कोई कॉलम है एलर्जी एनके है उसको हमको अपडेट करके क्या करना है एलर्जी को नल करना है. और हमारे पास नल है एलर्जीज के अंडर उसको अपडेट करके एनके करना है. तो यहाँ पे क्या करें अपडेट पेशेंट लेंगे देन सेट एलर्जी इक्वल टू एनके क्योंकि अपडेट किससे कर रहा है एनके. और यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी वेयर क्लॉज लगेगी कहाँ पे अपडेट कर रहे हैं देन जहाँ पे एलर्जीज इज नल, राइट. सो वी कैन यूज like syntax in this manner like update table name set जो कि अपडेट करना है वॉट एवर वी नीड टू अपडेट एंड देन वेयर क्लॉज कहाँ पे अपडेट करना है. यू कैन सी इट हियर जहाँ पे भी नल होगा वहाँ पे इनके आ गया एलर्जी. यहाँ पे नल था इनके 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 इनके. सो दिस इज ऑल अबाउट द अपडेट. सो बेसिकली एक बार देख लेते हैं सेलेक्ट में जो भी सेलेक्ट करना है वो यूज करते हैं. देन इंसर्ट में जिस टेबल में हमें इंसर्ट समथिंग करना है तब इंसर्ट क्लाउज का यूज करते हैं. डिलीट में इफ वांट वी वांट टू डिलीट समथिंग अगर उसमें उसमें भी वेयर क्लाउज के साथ करेंगे नहीं तो पूरा हमारा डिलीट हो जाएगा. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम तब ये चीज. फिर सिमिलरली हम अपडेट में क्या करेंगे विच इज ऑलरेडी देयर इन द टेबल बट वी वांट टू अपडेट दैट पर्टिकुलर थिंग. तो हम लोग क्या करेंगे अपडेट स्टेटमेंट का यूज करेंगे सिंटेक्स. और उसका सिंटेक्स सिंपल रहेगा अपडेट टेबल नेम देन सेट जो कि अपडेट करना एंड देन वेयर क्लाउज. फिर चलते हैं एक लास्ट है हमारा आज का वेयर क्लाउज. हाउ वी आर गोइंग टू यूज वेयर क्लाउज. सो बेसिकली वेयर क्लाउज का यूज क्यों करते हैं क्योंकि एसक्यूएल में यू कैन सी वी हैव अ ह्यूज डेटा सेट. यहाँ पे है लाइक we are getting 20 rows 30 rows but if you are dealing with industry level data set then you can't imagine कि हमारे पास like 1 crore rows के भी डेटा है. So in like in my industry I belongs to banking industry because I am working in American Express. So वहाँ पे होता है कि like कस्टमर के डेटा है उनके क्रेडिट कार्ड की रिपोर्ट है बिलिंग आईडी है तो वो कितने रोज की होती है लाइक 1 crore rows. But if we want to like know about a certain set of customer then we need to use the filter.
right? So before using a filter, we know like what sets of clause we are going to use. So उसके लिए क्या है हमारे पास एक where statement का यूज है. So where is basically used to filter a particular set of rows, particular set of column and particular set of record. So और इसका यूज कैसे आता है, select from उसके बाद where का आता है, ये नहीं कि select स्टेटमेंट लगाया उसके बाद वेयर लगा दिए तो दिस विल अ रॉन्ग सिंटेक्स. सो बेसिकली यहाँ पे सिंटेक्स कैसे चलता है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर. यहाँ पे एग्जांपल हम देखेंगे कि चलो सेलेक्ट स्टार से तो हमारा पूरा टेबल का जितने भी कॉलम है लाइक ये सबके डेटा आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए जहाँ पे जेंडर फीमेल है सिर्फ उसका डेटा चाहिए. तो आप यू कैन सी हियर जेंडर जितने भी फीमेल है. लेकिन अगर if we have used select a star from patients, तो gender male female whatever is there, it will just throw the whole table. But since we have used the filter using where clause, तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल वाला देगा. सिमिलरली अब क्या होता है कि कभी कभी मोस्ट डेटाबेस जो भी है हमारे पास वो कभी कभी डबल कोट्स के अंदर होता है बट एंड समटाइम सिंगल कोट्स के अंदर. तो अब जैसे पेशेंट आईडी 1 है तो यहाँ पे होगा जितने भी पेशेंट आईडी 1 है उनके डेटा आ जाएंगे. SQL requires single quotes around text values. हाँ, जब टेक्स्ट वैल्यूज होगा तो हमें सिंगल देना है एंड इंटीग्रल वैल्यूज है डेटा टाइप अगर इंटीजर है तो उसमें डबल कोट्स नहीं देना है. यू कैन सी हियर यहाँ पे पेशेंट आईडी ग्रेटर देन 5 है तो ये भी यहाँ पे भी. लेकिन सिमिलरली आप देख सकते हो जहाँ पे नॉट इक्वल टू का भी सीन है हमारे पास. नॉट इक्वल टू देखो हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं, ये बाद में हम पढ़ लेंगे ऑपरेटर जितने टाइप के हैं. बिटवीन का यूज, बिटवीन एंड का यूज है. फिर हम लोग फिल्टर करते हैं लाइक अगर हमें फर्स्ट नेम सपोज वी वांट टू फिल्टर फर्स्ट नेम विच इज स्टार्टिंग विथ लेटर ए, तो हम लोग पहले लेटर ले लेंगे लाइक ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए परसेंट डबल डैश के अंदर. देन अगर हमें चाहिए कि जो भी बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी परसेंट डबल डैश के अंदर, डबल कोट्स के अंदर. और इन्हें कलेक्शन कलेक्शन में हम ये यूज करते हैं कि लाइक वी वांट टू फिल्टर रिकॉर्ड जहाँ की पेशेंट आईडी है 135985, तो वी कैन जस्ट यूज वेयर पेशेंट आईडी इन और एक क्या बना लेंगे, सब क्वेरी टैब बना लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो उसमें से जितना भी होगा दिस विल जस्ट गिव मी द डेटा. यू कैन सी हियर. तो हमें क्या चाहिए था 1369, तो 1369 के रिकॉर्ड आ गए. अब यहाँ पे चाहिए जिसका फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ ए है. यू कैन सी इट हियर, जिसका फर्स्ट नेम देखो ये से है. अगर यही रहता जिसका लास्ट में ये आ रहा देन हम लोग क्या करते, डबल कोट्स के अंदर परसेंट ए कर देते क्योंकि हमें लास्ट वाला चाहिए. तो जहां पे रहेगा कि मुझे अगर फर्स्ट में चाहिए ए तो ए आगे आएगा उसके बाद परसेंटेज आएगा. अगर हमें चाहिए लास्ट में तो ए शुड बी इन लास्ट. सो या दिस इज व्हाट अबाउट द बेसिक क्वेरीज वेयर वी हैव लर्न सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट अपडेट एंड वेयर क्लाउज. सो आई थिंक आज के लिए इतना तो काफ़ी है. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. uh, तब तक के लिए like keep practicing these things. So because without any practice you can't be like master of anything. So if you want to gather more knowledge, maybe मैं तो basic बस बताया हूँ अभी क्योंकि we are going from like bottom to top. धीरे धीरे चलते हैं, प्रैक्टिस करते चलेंगे एंड देन वी विल रीच वन डे, उस लेवल पे पहुंच जाएंगे. Okay guys, so thanks for watching my video, and for more such informative video on SQL right now, you can just subscribe my channel and like the video so that you can get like whenever I post a video you can get the notification. Thank you, thanks for watching.